Good afternoon, students. Today we are going to discuss the third measure of central tendency, and that is median of data. We have discussed mean of data, we have discussed mode, and now the third measure of central tendency is median. What is the meaning of median? Median means middlemost score. See, I have written it on the piece of paper. Median means the middlemost score. But middlemost when? After arranging it in proper order. Okay, supposing you are given a group of scores and you find the middlemost score, that may not be correct. You have to arrange in ascending or descending order, increasing or decreasing order. Once you got it in increasing or decreasing order, then you find the middlemost score. But median means middlemost score. Okay, so now let us just see. When you want to find median, there are two types of data: ungrouped data and grouped data. Obviously, for group data, there is a formula. That formula is M stands for median. Okay, the symbol for median is M. The symbol for mean is X bar, but the symbol for mode is Z. Okay, in the same way, the symbol for median is M. For grouped data, there is a formula. Median M is equal to L plus into bracket N by 2 minus CF upon F into H, where CF is called cumulative frequency, N is the number of scores. Okay, N total of frequency, frequency column का total है, and F is the frequency. Okay, frequency of median class. जैसे उसमें modal class था, इसमें इसी तरह से median class है. I'll come to that afterwards. And H, of course, H is length of class interval. Length of class interval. Alright? I'll come to all this later on, but let's first discuss this. Ungrouped data. This is for group data, median for ungrouped data when the scores are given, observations are given. Observations and scores means the same thing. First of all, you must arrange all the observations in ascending order. Ascending means increasing order. From lowest, that is the smallest score, to the highest score. Okay, and then use the formula M is equal to N plus 1 divided by 2th observation if N is equal to odd. If N is an odd number. If N is an even number, then N by 2 plus N by 2 plus 1. Okay, actually if you remember only one formula, that is enough. I'll show you how. Alright, let us do one example. See, supposing you are given find the median of the following observations. Suppose you are given 6, 7, 2, 4, 3, 9, 8, 6, 5. Okay, how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 9 observations. So N is equal to odd. Okay, but first arranging in ascending order. See what I am writing here. Arranging in ascending order. Arranging in ascending order. Increasing order. We arrange it in increasing order or ascending order. Right? See now. First of all, 2 is the minimum one. 2, then 3. Okay, 2, 3. Then we have got 4, then we have got 5, 6 is 2 times, so write it 2 times. Okay, then we have got 7, then we have got 8, and then 9. Now how many scores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. You should count it here also, so that you have not forgotten any. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, कोई भूल नहीं गए ना, वो देखना चाहिए, इसलिए काउंट फिर से काउंट करना चाहिए. और इधर देखो 6 2 बार है तो 2 बार लिखो. Okay, here N is equal to odd number है ना, 9 है. Okay, is equal to 9 है. So therefore I apply this formula. M is equal to N plus 1 divided by 2 this particular observation, a observation. Alright, so now if I want to do this, all I have to do is N is equal to 9 plus 1 divided by 2 observation. अब 9 plus 1 is 10, 10 divided by 2 is 5. So fifth observation, ये फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है, वो मीडियन है.
लेकिन ये फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कहाँ पे देखेंगे? यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो हमने अरेंज किया ना उसमें फिफ्थ देखना चाहिए. 1 2 3 4 5, so 6. Therefore median is equal to 6. Alright, so median is equal to 6. You can see it's very easy, but follow the same steps. Once again, find the median of the following observations. First of all, count the number of observations. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, now arrange in an ascending order, increasing order. Increasing order में अगर 2 है, अगर कोई भी स्कोर 2 बार 3 बार 4 बार, तो उतनी बार लिखना चाहिए. ओके, फिर से एक बार गिनो कि एक भी मिस नहीं हो गया. उसके बाद n इज इक्वल टू ऑड 9 है इसमें. सो अप्लाई द फॉर्मूला n + 1 टू डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन और स्कोर, एंड यू गेट फिफ्थ ऑब्जर्वेशन. फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इसमें देखो, उसमें नहीं. सो यू गेट m इज इक्वल टू 6. ओके, लेट मी सी another one. Okay, a similar type. Okay, again these are not very difficult ones. See, let us say find the median. Find the median. Okay, लेकिन हमको ऑब्जर्वेशंस दिया है. फॉर एग्जाम्पल सी -6 -5 4 3 0 8 -2 2 8 6. अब कितने हुए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, देयरफॉर n इज इक्वल टू 10. अब 10 मतलब इट इज नॉट इवन, or rather it is not odd, it is an even number. Okay, so now arranging in ascending order. Arranging in ascending मतलब increasing. Okay, ascending order. इसको असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज लिखता रहा हूँ. तो सबसे पहले -6 आएगा, उसके बाद -4 आएगा, फिर -2 और 0. ओके, -6 -5 -2 0. अब देखो 2. ओके, 2 इधर है, 2 के बाद 3 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं, 6 है. ओके, 7 नहीं है, 8 है. अब गिनो, इसमें कितने थे? 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ऑब्वियसली यू मिस्ड आउट वन. कौन सा मिस हुआ? इसलिए गिनना चाहिए, सेकंड टाइम भी गिनना चाहिए. अभी देखो 6 -6 आ गया, -5 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 0 आ गया, 8 आ गया, -2 आ गया है, 2 बार तो नहीं है, -2. ओके, उसके बाद 2 है. राइट, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है. ओके, इसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, देन 4 कितनी बार है देखो, 4, और उसके बाद 6 है और 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, हियर -6 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. एक मिस हो रहा है. कौन सा मिस हो रहा है देख लेते हैं. ओके, ये -6 आ गया, -6 -5 4, फिर 3 आ गया. ओके, 0 आ गया, 0, 8 आ गया, 8, ये -2, ऑलराइट, 2, फिर 8 और 6. तो अभी कौन सा रह गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Obviously 1 is being missed out. Well, let me see it. -6 -5, then 4 आ गया है, 4 इधर है. ऑलराइट, देन 3 आ गया है. ऑलराइट, 3 आ गया है, दैट्स 3. ऑलराइट, एंड देन उसके बाद 0 आ गया, 8 आ गया, -2. ओके, -4 है, -3 नहीं है, -2 है. ऑलराइट, 2 है, देन 2 फिर से आ गया है. ओके, 8 4 and 6. ऑलराइट, there seems to be some mistake here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, funny. 6 and 8, 2 3, -6 -6, -5 -5, 4 आ गया है, 4 आ गया इधर. ओके, 3 आ गया है, 3 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 8 आ गया, -2 आ गया.
2 आ गया है, 2 आ गया है, ओके, देन 8 आ गया, okay, and then 6. So therefore any of the scores are being repeated, -2 and 2. Anyway, we'll take 10. Okay, what are the mistake? Maybe there seems to be some mistake and I don't get it right now. Anyway, if n is equal to 10, then m is equal to n upon 2 plus n upon 2 plus 1, okay, and then divide by tooth score. Observation. Now you can see that either n by 2, n अगर 10 है तो 10 by 2 is fifth observation, fifth plus 1, sixth observation, okay, and then you divide by 2 this particular observation, okay. Now let us count. What is the fifth observation? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So that is 2 plus 3 divide by 2, okay. 2 plus 3 divide by 2 is 5 divide by 2, this particular observation, okay. 5 divide by 2 is 2.5. So therefore your median is 2.5, okay. So once again, if you want to find the median, but instead of all this, I'll give you a very simple explanation. Always use this formula. देखो, m is equal to n plus 1 divide by 2 this particular observation, okay. देखो, ऑड हो या इवन हो, मैंने ऑड के लिए भी इवन के लिए दोनों के लिए बताया है, बट डोंट वरी, अगर मान लो कि इवन के ऑड का फॉर्मूला भूल गए हो तो एक ही फॉर्मूला याद रखो. अभी देखो इसमें 10 है, ओके, 10 plus 1 11, ओके, 10 plus 1 11 डिवाइड बाई 2 observation, okay. 10 plus 1 is 11 divided by 2 is 5.5. 5.5th observation. अब 5.5 किसके बीच में आता है? 5 और 6 के बीच में, इसलिए फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2. देखो यही हो गया फिर से, ओके. इसका मतलब है अगर एक ही फॉर्मूला याद रखो तो भी चलेगा, दोनों फॉर्मूला जैसे बुक में दिया है या सेकंड फॉर्मूला भी याद रखना वो ज़रूरी नहीं है. अब फिफ्थ और सिक्स्थ कौन सा है? 2 और 3, फिर से 2 और 3 5 डिवाइड बाई 2 इज 2.5. सो मीडियन आ गया, ओके. सो देखो वो ऑड है या इवन है, इट डजेंट मैटर, ओके. यू कैन यूज वन फॉर्मूला टू फाइंड द मीडियन, बट इफ यू वांट टू गो स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द बुक देन n by 2, ओके, प्लस n upon 2 by 1 प्लस 1. मतलब अगर ये फिफ्थ है तो ये सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन होगा, ये सेवन्थ है तो ये एट्थ ऑब्जर्वेशन होगा, क्योंकि n upon 2 अगर फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है तो उसको प्लस 1 करेंगे तो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन आएगा, तो वो तो वही है. सो ये फॉर्मूला सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखोगे तो भी चलेगा, अगर दोनों करना है तो भी वो सेम ही आंसर आएगा. आई प्रीफर दिस मेथड सिंपली बिकॉज एक ही फॉर्मूला याद रखने की जरूरत पड़ती है, दो नहीं. अगर इफ़ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल विद दिस इज ऑल्सो ओके. इफ़ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल विद दिस दैट्स फाइन. जस्ट लेट्स हैव अ लुक वंस अगेन. इसमें कुछ गड़बड़ नहीं थी. -6 -5 4 आ गया, मैं टिक मार कर देता हूँ, ओके. 6 -5 -5, उसके बाद -2 है, फिर 0 है, ओके, 0 है, फिर उसके बाद 2 है, ओके. उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है. तो कौन सा रह जाता है? 1 2 3 4 5, हाँ 8 2 बार है. देखो दिस इज समथिंग दैट कैन हैपन. इट्स अ स्टूपिड थिंग बट इट कैन हैपन. 8 2 बार है, ओके, लेकिन वो लास्ट में था इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट्स इन दी एंड, ओके. बट दिस इज व्हाट कैन हैपन, ओके. नाउ यू कैन सी 8 2 बार है. दैट इज वेयर आई मिस्ड आउट, ओके. नो प्रॉब्लम नाउ. But remember it is the same thing. You can use this formula. M is equal to n plus 1 upon tooth observation. Okay? ये हर बार यूज कर सकते हो. या अगर when then n is equal to odd, ये odd है. When n is equal to even, अगर n is equal to even तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो? ये n by 2, okay, observation प्लस n upon 2 बाद में उसके बाद वाला प्लस 1 करके, और इन दोनों को 2 से डिवाइड करो. अगर ये फिफ्थ है प्लस सिक्स, फिफ्थ है प्लस 6, इट इज़ द सेम थिंग. ये दोनों फॉर्मूला में एक्चुअली कोई देयर इज नो डिफरेंस. अगर याद रखना है तो एक ही याद रखो तो भी चलेगा. ऑलराइट, नाउ
let us see after that. Let us see for grouped formula. Okay, that is for grouped distribution. Median for grouped data. Median for grouped data. Median for group data. Now let us see. Supposing I have got class intervals. Okay, class intervals. Suppose 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, and 60 to 70. Alright, and you got your total here as usual. Alright, now if you want to find median, suppose the frequency is given here. Let us say 7, 13, 12, 18, 14, 16 and 10. So n is equal to the total of frequency 13 and 7, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. So this is equal to 90. Okay. Now you find CF. What is CF? CF is cumulative frequency. Cumulative. Okay. Cumulative frequency. Cumulative frequency का मतलब क्या है? Cumulative frequency means total of frequency. उसका total sum of frequency. Okay, तो पहले frequency दे दिया है, उसके बाद उसको CF करेंगे. अब CF cumulative frequency कैसे? फर्स्ट वन 7 है तो 7 को वैसे ही रहने दो. अब ऐड करते जाओ. 13 plus 7 20, 20 plus 12 32, 32 plus 18 50, 50 plus 14 64. This is 64 plus 16 80, 80 plus 10 90. यहाँ पे जो टोटल है ना वही इधर आना चाहिए. सेम इधर 90 का टोटल है. ओके, इधर सबका टोटल करो तो भी 90 जाना चाहिए. अगर 90 नहीं आता है तो फिर तुम्हारा टोटलिंग मिस्टेक है. ओके, अब CF आ गया. अब हम इधर n/2 निकालेंगे. देखो n/2, n कितना है 90. ओके, 90 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 45th ऑब्जर्वेशन. 45th ऑब्जर्वेशन. अब 45th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे है? ओके, 45th ऑब्जर्वेशन इधर इसमें देखना चाहिए. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो ये 32 है. 32 में 45th ऑब्जर्वेशन नहीं आ सकता है. 50 में आ सकता है. ओके, तो ये 50 में n/2 आएगा. तो इसको मीडियन क्लास बोलते हैं. ओके, सो देयरफॉर मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास कौन सा है? 30 to 40. ये मीडियन क्लास हो गया 30 to 40. इसमें जो ये है ना, ये L की वैल्यू, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. ओके, सो देयरफॉर आई एम गोइंग टू राइट लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज 30. ओके, अब उसमें जो ये जो है इसको फ्रीक्वेंसी दो. सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 18. और CF की वैल्यू इसके ऊपर की वैल्यू है ना, उसको CF बोलते हैं. ये CF है. ऑफकोर्स ये पूरा CF ही है, लेकिन कौन सा लेना है? ऊपर वाले लेना है. उसकी लाइन में नहीं लेना, ऊपर का वाला. दैट इज CF इज इक्वल टू 32. ऑलराइट, एंड देन ऑफकोर्स n/2 इज 45. ऑलराइट, अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे. अब फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है. ओके, वी यूज द फॉर्मूला m इज इक्वल टू L plus n/2 minus CF upon F into H. ओके, सो L की वैल्यू 30. देखो इधर हमेशा पहले लिस्ट बना लेनी चाहिए. इधर अगर लिस्ट बना लेते हैं तो इट बिकम्स अ लॉट ईजियर एंड फास्टर. ओके, नाउ n/2 कितना है? 45. CF की वैल्यू कितनी है? 32. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज 18. ओके, एंड H की वैल्यू कितनी होगी? हाउ मच इज H? 10. लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल इज 10. सो into 10. ऑलराइट, एंड यू गेट 30 प्लस 45 minus 32 is 13. 13 into 10 is 130. 130 upon 18. Okay, that is 30 plus 130 upon 18, which is actually 65 upon 9. You can do 65 upon 9, divide 65 by 9 and you will get it. Okay, so 130 divided by 18. 130 divided by 18, 18. And that is equal to 7.22.
7.2 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस ले लो. ओके, सो 37.222 अप्रॉक्सीमेटली. लास्ट में अप्रॉक्सीमेटली कर लो 22. ओके, सो नाउ मीडियन इज 37.22. ऑलराइट, नाउ यू कैन सी मीडियन क्लास क्या था 3240. तो 37 बीच में ही आएगा, बीच में ही आना चाहिए. मीडियन है, उसके वैल्यू जो आती है इधर ही आनी चाहिए. अगर इधर नहीं आती तो फिर आपका कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ है. ओके, सो वंस अगेन ये बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है. ओके, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट हियर. जस्ट लिसन केयरफुली. मीडियन फॉर ग्रुप डेटा हम पहले क्या करेंगे. मीडियन फॉर ग्रुप डेटा के लिए क्लास इंटरवल्स फ्रीक्वेंसी दिया होगा, आपको सिर्फ एक कॉलम बढ़ाना है, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालती है. फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को वैसे ही रखो. नाउ गो ऑन एडिंग द फ्रीक्वेंसी. 7 + 13 20, 20 + 12 32 + 18 50 + 14 64 + 16 80 + 10 90. जो लास्ट में आता है वो दोनों सेम ही आना चाहिए. ओके, नाउ अभी हमको n/2 निकालो. n/2 कितना होगा. 90 / 2 45th ऑब्जर्वेशन. 45th ऑब्जर्वेशन CF की वैल्यू में देखो. CF में की वैल्यू में 20 में नहीं आ सकता है, 30 में नहीं, 32 में नहीं आ सकता है, लेकिन 45 50 में आएगा. सो देयरफॉर मीडियन क्लास इज 3240. सो मीडियन क्लास इज 3240. इसमें लोअर लिमिट इज 30. सो हमारा L की वैल्यू 30 आ गई. फ्रीक्वेंसी उसी की लाइन में देखो तो 18 आ गया. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक ऊपर देखने का, ऊपर एक ही ऊपर 32. n/2 45 है और लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल 10 है. अब फॉर्मूला को अप्लाई करो धीरे से, बी केयरफुल. इसको पहले सिंप्लीफाई करो, फिर बाद में ऐड सब्ट्रैक्ट करो. ऑलराइट, आई विल डू वन मोर. दिस टाइम आई विल डू विथ स्लाइटली bigger values. Okay, so you can see whether it's bigger values or smaller values, it will make absolutely no difference whatsoever. Okay, let us see now. Class intervals are given here. Class intervals. Okay, suppose 0 to 100 है, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700. Okay, I generally take 7 classes but not more than 7. All right, this is your total. हम frequency देखते हैं. Frequency, all right, let us suppose 22. Okay, then 28, 15, then say 35. Okay, 25, 75 and 50. All right, we got large frequencies here. Now let us see. Okay, इसका टोटल करेंगे. You can see 8 into 10, 20, 30. Okay, 3 and 4 7, 8, 11, 11 into 13, 20, 25, 250. ये n की वैल्यू. अब हमको n/2 निकालना है. देखो, therefore n/2 is equal to 250 divided by 2 is 125th ऑब्जर्वेशन. 125th ऑब्जर्वेशन हमको देखना पड़ेगा, लेकिन किस में. हम पहले CF निकालेंगे. ओके, CF निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले वाला वो वैसा ही रहेगा. अब उसको ऐड करो, 20 40 50 हो जाएगा. 65, ये 100 हो गया, 125, ये 200 हो गया और ये 250 आ गया. सेम आना चाहिए. इधर जो 250 है इधर भी 250 आना चाहिए. ओके, नाउ 125 किस में आएगा. देखो ये दिया है 125. सो 100 में तो आ ही नहीं सकता, इधर 125. तो हमारा मीडियन क्लास क्या हो गया 400 to 500. सो देयरफॉर मीडियन क्लास. ओके, इधर लिखना है तो लिख सकते हो मीडियन क्लास. जैसे उसमें मॉडल क्लास था, इसमें मीडियन क्लास 400 to 500. ओके, लोअर लिमिट क्या है 400. सो L की वैल्यू 400. ऑलराइट, n/2 की वैल्यू कितनी है. n/2 इज 125. ऑलराइट, H की वैल्यू कितनी है 100 की वैल्यू है. इट्स अबाउट 100 ईच द लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल H. ओके, फ्रीक्वेंसी उसी की लाइन में फ्रीक्वेंसी कितनी है 25. ओके, और CF एक लाइन ऊपर ये 100, ये CF है. अब सब कुछ आ गया. अब फॉर्मूला को लिखो पहले. ओके, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F. ओके, into H into length of class interval. Now again you can see it's very simple.
ऑल यू हैव टू डू इज सब्सटीट्यूट। एल की वैल्यू इसमें से देखो, मैंने पहले लिख दिया, इजी हो जाता है। एल की वैल्यू देखो 400 है, n/2 की वैल्यू 125, सी एफ की वैल्यू 100 है, ओके, एफ की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 25 है और एच की वैल्यू 100 है, ऑलराइट। इसको रहने दो वैसे ही 400, 125 माइनस 100, 125 माइनस 100 इज 25, ओके, सो 25 अपॉन 25 इंटू 100, ओके, 125 माइनस 100 इज 25, 25 कैंसिल हो जाए, 100 आएगा, सो 400 प्लस 100 and that is equal to exactly 500, that is median. So median is 500. देखो ये इसमें ही आएगा, या तो 400 या तो 500 या तो 400 और 500 के बीच में आएगा मीडियन, ओके। सो यू कैन सी इट्स सिंपल वेदर इट इज़ फॉर क्लासिफाइड डेटा और अनग्रुप डेटा। ये अनग्रुप डेटा के लिए भी बहुत ईजी है, ओके। जस्ट हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर आपने बिना इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्ट कर दिया तो गलत आएगा। Only if you arrange in ascending order, ठीक, then only you will get it properly. Suppose you fail to arrange it, तो फिर आप इसमें देखोगे, इसमें नहीं देखोगे और वो गलत हो जाएगा, okay? So remember that for ungrouped data, arranging in ascending order is very important. इसमें से तो पहले ही arranging हो गया, देखो ये 0 to 100 है और ये 600 to 700 है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी तो पहले से ही अरेंज्ड है। कौन सी ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसलिए इसमें अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें करने की ज़रूरत पड़ती है। ऑलराइट, नाउ लेट अस डू वन क्वेश्चन वेर यू डू ऑल द थ्री टुगेदर, ओके। फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड, तीनों तीन। देखो ये क्वेश्चन नंबर, लेट अस सपोज दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस से, ओके, क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसी, ऑलराइट। class again I am taking easy only, so that just to illustrate 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, and then 60 to 70. I always generally take 7 class intervals. It becomes a little bit, 7 class intervals, it is not too much and not too less, okay. कभी कभी 5 क्लास इंटरवल भी होता है, वो थोड़ा सा कम पड़ जाता है। अब 7 लेते हैं तो कभी कभी 10 भी हो सकते हैं, और इट डजेंट मैटर नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। फ्रीक्वेंसी 7, 3, 15, 15, ओके, 10, 12 एंड 18। लेट अस सपोज n कितना आता है, 7 and 3 10, 10 and 30 40, 50, 60, 70, 80, ये 80 हो गया, ऑलराइट। हमको तीनों तीन, मीन, मीडियन एंड मोड, तीनों तीन निकालना है। सो उसके लिए हमको पहले कॉलम को कंप्लीट करेंगे, ऑलराइट। कॉलम को कैसे कंप्लीट करेंगे? पहले मिड वैल्यूज़ निकालेंगे, x की वैल्यू, क्लास मार्क्स, ये 5 होगा। अब 10 को ऐड करते जाओ, 15, ये 25, ये 35, ये 45, ये 55 और ये 65, ओके। 10 ऐड कर दिए क्योंकि h की वैल्यू 10 है, इसलिए हमने 10 ऐड किया है, ऑलराइट। ये मिड वैल्यूज आ गया, या तो क्लास मार्क्स। अब उसके बाद यू फाइंड यू आई इज x माइनस ए अपॉन एच, ओके। ये यू आई हम मान लो कि 35 को लेते हैं एज अज्यूम मीन ए, 35 को लेते हैं तो इधर 0 रख दो, इधर -1, -2, -3, इधर 1, 2 और 3 रख दो। अब FIUI चाहिए हमको, तो FIUI का कॉलम ले लेते हैं। FIUI में हमको सिर्फ F और U को 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 15 1 जा 15, 15 0 जा 0, 10 1 जा 10, 12 2 जा 24, 18 3 जा 54, ओके। नाउ इसको ऐड करो, कितना आता है? प्लस 50 and 20 70 80 88, ये 88 आता है। और ये माइनस को ऐड करो, कितना आता है? 15 and 6 21, 21 and 21 42, ओके। तो सिग्मा FIUI क्या आएगा? देखो सिग्मा FIUI दोनों को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करो तो 46, ये 46 आएगा, ओके। 46 प्लस आएगा, प्लस 88 माइनस 42 इज 46, ओके। नाउ अभी इसमें एक और कॉलम बाकी रह गया है, ओके। हम CF का कॉलम निकालेंगे, CF का कॉलम।
ऑफकोर्स ये रफ में करना चाहिए, इधर नहीं करना चाहिए, उसके बाद डायरेक्टली CF कॉलम होना चाहिए, ये स्पेस नहीं होनी चाहिए। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 के बाद 3 10 और 15 25 प्लस 15 40 प्लस 10 50 62 72 एंड 8 80। ओके, ये 80 है तो 80 आ गया। अब हमको मोड के लिए कोई कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब तीन हम निकालेंगे। ओके, पहले x बार निकालते हैं, मीन। x बार का फॉर्मूला a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi, दैट इज n एक्चुअली, इंटू h। a की वैल्यू हमने 35 लिया था, सिग्मा fi ui कितना आया 46 आया, सिग्मा fi कितना है 80 है, और h की वैल्यू 10 है। 35 प्लस 40, ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 46 डिवाइड बाई 8। ओके, 46 डिवाइड बाई 8, 46 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 5.75। रिमेंबर, ट्राई टू बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। 35 एंड 5 40.75, ये मीडियन आ गया, मीन आ गया। अब हम z निकालेंगे, z मतलब मोड। z इज इक्वल टू फॉर्मूला मेथड L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2, ओके, इंटू H। ऑलराइट, इसमें L की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखने का। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो 18 है, ओके, 7 13 15 10 12 18। ओके, 18 है ना, तो उसका 60 to 70 है मॉडल क्लास, तो 60 L की वैल्यू 60 आएगी, प्लस F1। ओके, अभी F1 है, देखो ये F1 होगा और ये F0 होगा। ओके, सो F1 इज इक्वल टू 18, और अदर F1 इज 18 और F0 इज 12। 18 माइनस 12, ओके, और H कितना है 10, और नीचे कितना आएगा 18 2 36 माइनस F0। F0 कितना होगा, F0 विल बी इक्वल टू ऊपर का 12 है, सो 12 माइनस F0, F1 और F2 इधर तो है ही नहीं। ओके, सो इन दिस केस व्हाट वी डू इज वी टेक इट एज 0 ओनली। ओके, वी टेक इट एज 0, बट रिमेंबर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। जनरली क्वेश्चन इस तरह से आएगा जो मैक्सिमम वैल्यू कहीं बीच में होगा, आजू बाजू, फर्स्ट नहीं होगा और लास्ट नहीं होगा। ये गलती से मैंने लास्ट में दे दिया, एक्चुअली ये लास्ट में नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, सो यू गेट, इसमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी बिकॉज ये लास्ट में और फर्स्ट में है, तो एक्यूरेट वैल्यू लाना मुश्किल हो जाता है। ओके, तो देयरफॉर 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 इज 6 इंटू 10 इज 60। ओके, एंड दिस इज 36 माइनस 12 इज 24। ओके, सो 60, ओके, नाउ 60 अपॉन 24, 60 डिवाइड बाय 24 is equal to 2.5 and that is 62.5। अब देखो इसमें डिफरेंस काफ़ी बड़ा आता है। डिफरेंस बड़ा इसलिए आता है कि ये जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना, वो लास्ट क्लास में है। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा इसमें ये कभी नहीं होगा। यू विल नेवर गेट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द फर्स्ट वन और लास्ट वन। ओके, बट द मेथड वुड बी द सेम, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, देन अब मीडियन निकालेंगे। मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ओके, नाउ इसमें L की वैल्यू, ऑलराइट, अब L की वैल्यू n/2 का निकालेंगे। n/2 इज 40। ओके, तो 40 इसमें इधर ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्लास, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्लास, मतलब 30 to 40। ओके, सो L की वैल्यू 30 है, n/2 इज 40 माइनस जो ये फोर्थ क्लास हमको 40 था उसके ऊपर वाला 25 है। ओके, H की वैल्यू 10 है, और नीचे F की वैल्यू इसकी लाइन में जो 15 है। ओके, सो 30 प्लस 40 माइनस 25 इज 15, 15 अपॉन 15, 15 अपॉन 15 इंटू 10। ओके, सो दैट इज 30 प्लस 10 एंड दैट इज इक्वल टू 40। देखो ये दोनों एक्यूरेट आए, एक्स बार और मीडियन दोनों एक्स सेम आए। मोड सेम इसलिए नहीं आया क्योंकि ये लास्ट क्लास में था, और इसलिए हमको F2 में प्रॉब्लम हो गया। F2 में प्रॉब्लम क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना आपको कहीं बीच में ही आएगी,
फर्स्ट और लास्ट में नहीं आएगा। व्हेन यू सी व्हेन ऐसा परिस्थिति हो ना, तो देखो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, इसको एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। लुक एट दिस नाउ, एम्पिरिकल फॉर्मूला। वैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मोड। ओके, किसको निकालने के लिए? मोड के लिए। z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। इसको एम्पिरिकल फॉर्मूला बोल। देखो इस मेथड से एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास आएगा, ये वैल्यू नहीं आएगा, देख लेना। 3 मल्टीप्लाइड बाई मीडियन, मीडियन कितना है 40, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई मीन, मीन कितना है 40.75, 40.75, 43 ज़ा 120, ओके, माइनस 42 ज़ा 80, 81.5, 81.50, ओके। तो निकालो इसमें, सो यू गेट 80 निकाल दे तो 40 माइनस 1 विल बी 38.5। देखो अभी इसके करीब आ गया है 40, 40, 38.5। अंडरस्टूड? सो याद रखो एम्पिरिकल फॉर्मूला विल गिव यू अ बेटर मोड इंस्टेड ऑफ दिस, बट व्हेन इट इज इन द फर्स्ट वन एंड लास्ट वन। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे इसमें है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लास्ट क्लास में या तो फर्स्ट क्लास में, दोनों में से कोई भी है, अगर बीच में कहीं है तो ये परफेक्ट मेथड है, ओके। लेकिन अगर वो लास्ट में है या तो फर्स्ट क्लास में है तो फिर इसमें F2 निकालना मुश्किल हो जाता है या तो F1 निकालना मुश्किल हो जाता है। सो व्हाट हैपन्स इन दैट केस, इट इज़ बेटर टू यूज एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तीन का रिलेशनशिप है। Z मतलब मोड इज 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स द मीन। उसकी वैल्यूज रख दो and you get 38.5, which is closer. Now you can see 40, 40.75, 38.5. So remember, this method is fine, but when the highest frequency is somewhere in between. अगर highest frequency first और last class में है तो empirical formula use करो। Understood? This is how you use the empirical formula. उसके लिए median और mean चाहिए और mode इस formula से निकल जाएगा। Alright? Then you see, we will also do tomorrow other questions regarding मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अभी मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का तो हमने किया है, अब 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो कैसे निकाल सकते हैं। और फिर मीडियन की एक एक्सरसाइज है विच इज़ नॉट वेरी लॉन्ग, आई विल बी एबल टू डू दैट टुमारो। ऑलराइट, सो फार इनफ फॉर टुडे। कीप वॉचिंग द वीडियोज़, लाइक द वीडियोज़, सब्सक्राइब टू द वीडियोज़। राइट हैंड साइड के ऊपर नीचे बटन है सब्सक्राइब का, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। एंड एट द सेम टाइम, ओके, लाइक द वीडियो एंड मेक अ कॉमेंट। अ सिंपल कॉमेंट ऑल्सो इज मोर देन इनफ, इट कैन एक्चुअली हेल्प टू get good feedback. Okay, feedback from you is very important. Okay, tomorrow we'll carry on with this. Meanwhile, I heard that you got a unit test. Keep preparing for your unit test also. Thank you and have a nice day.